गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, कल वाला न्यूमेरिकल किया तो फिर आप लोगों ने आया था आंसर? हाँ मैडम, आ गया था। ओके okay, calculate this numerical. A rectangular beam 100 mm wide and 250 mm deep is subjected to a maximum shear force of, that is a value of shear force of 50 kilonewton. Determine average shear stress, maximum shear stress and shear stress of 25 mm above neutral axis. Okay, so calculate this. A rectangular beam of 100 mm wide and 250 mm deep. Okay, this is a section of a beam. Width and depth and maximum shear force, that is equal to F. You have to determine average shear stress, maximum shear stress and shear stress at 25 mm above neutral axis. How to calculate? First of all, average shear stress. First of all, calculate average shear stress. How to calculate average shear stress? Tell me. Force upon area. Yes. Average shear stress का equation क्या है? That is equal to shear force divided by area. Okay. So my tau average is equal to what? That is equal to force divided by area. Okay. Force is given to you, that is equal to 50 kilonewton. Okay. 50 kilonewton. Okay. और area क्या है मेरा? 100 mm wide and 250 mm deep. तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये mm में है, ये किलो न्यूटन में है, तो वी हैव टू या तो न्यूटन mm में आंसर आना चाहिए, या तो किलो न्यूटन मीटर में, या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो या इसको न्यूटन में कन्वर्ट करो. ओके, तो सपोज वी आर कन्वर्टिंग दिस फोर्स इनटू अ न्यूटन इनटू 10⁻³ न्यूटन. एरिया इज इक्वल टू व्हाट? एरिया इज इक्वल टू B into D. ओके, so that is equal to 250 divided by 100. Okay, D into V or B into D. Okay, so calculate tau average. 2 Newton per mm square. 2 Newton per mm square. Okay, so this is your answer. Your tau average is equal to 2 Newton per mm square. Now calculate maximum shear stress, that is equal to tau maximum. कैसे कैलकुलेट करोगे? कौन बताएगा? What is tau maximum? 1.5 into m tau जो. Yes, tau maximum is equal to 1.5 tau average. Very good, Ankit.
Yeah, मैम इसमें very good करता हुआ मैं अच्छा कल है को ना, तुझे बताया। याद है? किसी को याद नहीं है? Yeah, इजी तो ये है लेकिन याद रहना चाहिए ना. So my tau maximum is equal to 1.5 tau average. Okay, so your tau average is 2 and your multiplied by 1.5, so your tau maximum is equal to 3 kilonewton per mm square. सही है? So your tau maximum is equal to 2 Newton per mm square. ओके, दूसरा आपका टाउ मैक्सिमम कहाँ पे होगा? अगर आप सपोज आपको ये इक्वेशन याद नहीं है कि अगर आप कंफ्यूज है 1.5 है 2 है 1.6 है 1.8 है, सपोज यू आर कंफ्यूज, ओके, तो आप क्या कर सकते हो? सेकंड मेथड, आप ये जो इक्वेशन है ना आपका, दिस इज इक्वेशन फॉर टाउ मैक्सिमम. ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस इक्वेशन, you have to remember this equation. यहाँ z is equal to y square. Okay, so your equation is tau maximum is equal to f upon 2i. Tau is equal to f upon 2i d square by 4 minus y square. Okay, so you have to remember this equation. Okay, ये एक इक्वेशन आपको किसी भी मतलब आपको सपोज कोई भी किसी भी सेक्शन के लिए फाइंड करना हो ना, तो अब ये इक्वेशन याद रखना. ओके, सो किसी भी रेक्टेंगुलर के लिए किसी भी डेप्थ पे फाइंड करना हो तो ओके, y is equal to distance. Okay, so you have to remember this equation, that is equal to tau is equal to f upon 2i, where I is equal to moment of inertia d square by 4 minus y square. Okay, where हमारा टाउ मैक्सिमम कहाँ होगा? आई टोल्ड यू योर टाउ इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस. ओके, व्हाट इज वाई? वाई इज अ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो बट ऑब्वियस neutral axis to neutral axis distance, that is equal to 0. So in this case, for the tau maximum only, okay, in this case for finding out the tau maximum, your y is equal to 0. Your equation become this, आपका इक्वेशन बन जाएगा. ओके, यू हैव f, ओके, यू हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का? What is the moment of inertia for the rectangular BD section? cube by 12. Yes, that is equal to BD cube by 12. Okay, what is D? D is equal to your depth, so D square divided by 4. चलो इस इक्वेशन को यूज करके टाउ मैक्सिमम फाइंड करो. सेम आ रहा है. टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू f upon 2i d square divided by 4. इसी को ही सिंप्लीफाई करके हम ये आंसर लाए हैं. ठीक है, मैम 2.88 आ रहा है. आ रहा है 2.88 88. आ रहा है. ऐसे कैसे आएगा? कोई और फाइंड करो. सुदीप्ता, हेलो, सिविल 5. हाँ मैम बोलो. चल मुझे ये फाइंड करके दे टाउ मैक्सिमम. ये इस इक्वेशन में वैल्यू इंसर्ट कर और मुझे टाउ मैक्सिमम फाइंड करके दे. ठीक है मैम. ओके, f upon 2i where I is equal to your moment of inertia, d is equal to your depth. हाँ मैम करके देखो. Okay, find out the tau maximum.
जल्दी फटाफट। और किसी का आंसर आया या नहीं? सिर्फ अर्चना का ही आया है? आ गया मैम, आ गया। क्या आया? 2.8 आया? अगर 2.88 आ रहा है फिर भी चलो नियर टू 3, इट्स ओके। चलो ओके। सुदीप्ता आया तेरा आंसर? मैम 3.1 आया मेरा तो। क्या आया? 3.1। 3.1? हाँ ओके ठीक है, 3 आना चाहिए। ओके देख लेना। ओके नाउ suppose you have to find tau at top. Okay, suppose shear stress at top. Okay, this is maximum, this was the maximum shear stress that, it is at neutral axis. अगर आपका suppose आपका ऐसा डायग्राम है। अगर दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो अगर ये हमारा टाउ का अगर हम फिगर ड्रॉ करें, सो दिस इज अवर डायग्राम। ओके, सो यहाँ पे हमने मैक्सिमम टाउ मैक्सिमम फाइंड कर लिया। ओके, तो अब मुझे सपोज मुझे यहाँ पे टाउ फाइंड करना है, टाउ एट टॉप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट टॉप। ओके, तो शियर स्ट्रेस एट टॉप, तो टॉप के लिए मुझे शियर स्ट्रेस कैसे फाइंड करना है? हाउ टू फाइंड माय शियर स्ट्रेस, हाउ आई विल फाइंड माय शियर स्ट्रेस एट टॉप। तो मुझे टॉप पे मेरा शियर स्ट्रेस कैसे फाइंड करूंगी मैं? ओके, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमने कल डिराइव किया था कि टाउ इज इक्वल टू एफ अपॉन 2y डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे ओके मेरा ये जो y है, ओके ऊपर वाला जो केस था, उस केस में मुझे डिस्टेंस क्या लेना था? न्यूट्रल एक्सिस से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस। ओके, सो दैट्स वाई मेरा y क्या हो गया था? 0, बिकॉज इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस बट ऑब्वियस 0 होगा। ओके, मुझे मैक्सिमम कहाँ फाइंड करना है? न्यूट्रल एक्सिस पे। ओके, अब न्यूट्रल एक्सिस ये जो मेरा y होता है, व्हाट इज माय y इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो बट ऑब्वियस मेरा न्यूट्रल एक्सिस से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा? 0, दैट्स व्हाई मेरा y 0 आया था। बट इन दिस केस आई हैव टू फाइंड माय शियर स्ट्रेस एट टॉप। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? कितना होगा? चलो बताओ बताओ, ये डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये टोटल डिस्टेंस मेरा d है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? d/2। Yes. Okay, so in this case we have to find shear stress at this point at top. Shear stress at top. Okay, we have to find shear stress at top. Okay, तो इस इक्वेशन में व्हाट इज माय y इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो ये मेरा टॉप है, तो ये टॉप का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? तो दैट इज इक्वल टू d/2। तो इंस्टेड ऑफ दिस ओके माय y इज बिकम d/2। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर मेरा क्या हो जाएगा? d/2। ओके, सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d²/4 माइनस d²/4 इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो मेरा शियर स्ट्रेस टॉप पे क्या होगा? ऑलवेज 0। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, तो इतना लिख लो। अगर आपको एग्जाम में पूछा है कि फाइंड आउट दी, अब अगर आपको ऐसे पूछा है कि ड्रॉ दी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो ये पॉइंट का शियर स्ट्रेस, ये पॉइंट का शियर स्ट्रेस और मिडल वाले पॉइंट का शियर स्ट्रेस। तो मेरा टॉप पर जितना स्ट्रेस होगा यहाँ पे भी उतना ही होगा। अगर मेरा टॉप पे 0 है
तो मेरा बॉटम पे भी क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू 0 और यहाँ मेरा होगा टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो आपका ऐसा डायग्राम आएगा, इसलिए आपका ऐसा डायग्राम आया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे मैक्सिमम। सो दिस इज योर shear stress distribution diagram. ओके, सो राइट डाउन दिस। ओके, इतना लिख लो कि shear stress at top. ओके, अगर फिगर ड्रॉ करना हो तो फिगर ड्रॉ कर लो, ऊपर वाली हमारी फिगर है ही, जो हमने डेरिवेशन किया था ना उसमें फिगर है ही। ओके, सो दिस इज अवर जनरल इक्वेशन, टाउ इज इक्वल टू, इस न्यूमेरिकल में आपको नहीं पूछा है लेकिन अगर पूछे तो, ओके, सो शियर स्ट्रेस एट टॉप, राइट, शियर स्ट्रेस एट टॉप। ओके, तो ये शियर स्ट्रेस एट टॉप, तो F अपॉन 2I, ये आपको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपका इसका ही सिंप्लीफाई कर दोगे ना तो आपको 0 हो जाएगा। तो एट टॉप योर शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 at top and bottom. You can write at top and bottom your shear stress tau is equal to 0. समझ आया ना कैसे 0 आया वो? We have to take a distance from neutral axis. Neutral axis से top का distance, neutral axis से bottom का distance. So that is equal to d by 2. y क्या है आपका? Neutral axis से distance. अगर आप मिडल में, अगर आप न्यूट्रल एक्सिस पे फाइंड कर रहे हैं तो आपको लेना है न्यूट्रल एक्सिस से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, तो ये 0 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू माय टाउ मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ होगा? ऑलवेज न्यूट्रल एक्सिस पे। सो राइट डाउन। लिसन, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछना प्लीज। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों चारों, 3 हाँ 4 है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत इजी है लेकिन डेरिवेशन आज आएगा तो न्यूमेरिकल बहुत इजी लगेगी आपको। चलो फटाफट करो आज, फिर हम लोगों का ट्रायंगल का कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। हो गया ये? ओके यस मैडम। ओके, नाउ इसमें आपको इसके आपके आपने एक फाइंड कर लिया, एवरेज शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट टॉप। ओके, उसका थर्ड नंबर देना, और फोर्थ नंबर दो शियर स्ट्रेस एट 25 mm अबो न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से 25 mm के डिस्टेंस पर। तो अब क्या करोगे, चलो बताओ। ये तीनों किया, बस ऐसा ही है, अब क्या करोगे? y की जगह 25 डाल दो। यस, ओके, सो इन दिस इक्वेशन आपको सेम ही यूज करना है, यही यूज करना है, बट आपका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? 25। तो योर y इज इक्वल टू 25 mm। बस आपके पास f होगा, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आपके पास डेप्थ है, सो यू कैन एबल टू फाइंड। ओके, तो फाइंड आउट। ओके, आपको इक्वेशन यही लेना है, बट इंस्टेड ऑफ y आपका डिस्टेंस क्या आएगा? आप 25 mm। सो योर y बिकम 25 mm. So find out shear stress at 25 mm above neutral axis. ये न्यूमेरिकल लिखना है, ये आपकी बंसल का नहीं है, ये किसी और बुक से न्यूमेरिकल है। ओके, आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए ना तो फिर ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ कर देना। ये आपका d इज इक्वल टू कितना है आपका? 250। दिस इज इक्वल टू 100। दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, दिस डिस्टेंस इज 250 by 2। ओके, मतलब 125। So this distance is 125. Okay, and then draw the shear stress distribution diagram. तो यहाँ पे आपका आएगा टाव इज इक्वल टू 0, टाव इज इक्वल टू 0 एंड टाव मैक्सिमम इज इक्वल टू 3 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर, 3 सॉरी न्यूटन पर mm स्क्वायर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल ड्रॉ दिस डायग्राम। ये डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, और मुझे कौन आंसर देगा? और मैं जिसको पूछूं वही आंसर देना, ये 25 mm के लिए।
विराज कर रहा है तू मैकेनिकल 5? Yes, ma'am. ओके ओके मैकेनिकल 8 मुझे चल 25 mm के लिए आंसर दे. 4 number shear stress at 25 mm above neutral axis. मैकेनिकल 8 सुदीप्तो यस है मैम ना? टाउ की वैल्यू हाँ हाँ दे रहा हूँ यस मैम हाँ 25 mm पर टाउ मेरा क्या मिलेगा? ये इक्वेशन आपको याद रखना है. अगर आप ये इक्वेशन याद रख लोगे ना तो ये अगर आपको ये रिलेशन याद नहीं आएगा फिर भी आपको सिर्फ y डिस्टेंस लेना है. अगर टॉप हो y0 सॉरी y d/2 हो जाएगा. अगर मिडल हो y आपका 0 हो जाएगा. ओके और जो भी डिस्टेंस हो सपोज आपका 15 mm डिस्टेंस है तो y आपका 15 mm हो जाएगा. तो आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन याद रखना है. उसके बेस पे आप सारे न्यूमेरिकल कर पाओगे. मैम 2.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर 2.88 और किसी का आ रहा है 2.88? हाँ मेरा भी 2.88 ओके चलो वेरी गुड. ओके तो हम लोग एक और डेरिवेशन करते हैं दैट इज फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन. ओके ये हमारा किस सेक्शन के लिए था? रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए. ओके आपका जो shear stress डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना था दैट वाज फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन. नाउ फॉर द ट्रायंगुलर सेक्शन. ओके so here shear stress distribution over triangular section. okay so this is a over triangular section. एक तो आप फिगर एकदम ठीक से ड्रॉ करना. अगर नहीं दिख रहा तो मुझे बोलना. ओके मैं आपको पहले फिगर एक्सप्लेन करती हूँ कि फिगर मेरी क्या है. ओके सो हियर इट इज अ ट्रायंगुलर सेक्शन हुज बेस इज b. ये मेरा ट्रायंगुलर सेक्शन है जिसका बेस है b है और जो हाइट है दैट इज इक्वल टू h. ओके सो हियर इट इज अ ट्रायंगुलर सेक्शन हुज बेस इज b एंड हाइट इज h. मेरा एक ट्रायंगुलर सेक्शन है उसका बेस क्या है b है हाइट क्या है h है. नाउ ये आप CGMI में पढ़ गए थे कि ट्रायंगुलर सेक्शन का न्यूट्रल ऑफ एक्सिस कहाँ होता है उसका CG कहाँ होता है. ओके तो उसका CG क्या होता है कि आपके बेस से 1/3 h पे होता है और टॉप से 2/3 h पे. याद है ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किया था. याद है ये इक्वेशन मैंने आपको लिखवाए थे. याद है? अगर याद नहीं है तो याद रख लेना. ओके योर CG इज न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है कि आपका जो सेक्शन है उसकी मिडल में से मतलब सेंटर CG में से सॉरी मिडल में से नहीं CG में से आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से जो एक्सिस पास होती है दैट इज इक्वल टू योर न्यूट्रल एक्सिस. तो सर्कुलर और रेक्टेंगल के लिए वो क्या होगी मिडल में से पास होगी. बट ट्राइंगल के लिए वो क्या होगी योर न्यूट्रल एक्सिस इज 1/3 फ्रॉम बेस एंड 2/3 फ्रॉम टॉप. ओके तो पहले क्या करो आप पहले एक ट्रायंगुलर सेक्शन बनाओ उसकी एक न्यूट्रल एक्सिस बनाओ. न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस बेस से है 1/3 h. मेरे साथ आप लोग फिगर ड्रॉ करते जाओ तभी आप समझ पाओगे. ओके और टॉप से है 2/3 h. इतना समझ आया? एक बार फिर से मैम एक बार फिर से. ओके हियर इट इज अ ट्रायंगुलर सेक्शन. ये एक मेरा ट्रायंगुलर सेक्शन है. ओके मेरे ट्रायंगुलर सेक्शन का बेस क्या है b. ये जो मेरा बेस है ना वो है b. सपोज वो b है और ये जो हाइट है ना ये इतनी हाइट है. ओके यहाँ पे नहीं दिस इज माय हाइट. सो माय हाइट इज h. okay here it is a triangular section whose base is b height is h. okay और इसकी न्यूट्रल एक्सिस उसकी न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से जो पास होगी वो क्या होगी उसकी न्यूट्रल एक्सिस. ओके सो वो होगी उसकी न्यूट्रल एक्सिस. तो उसकी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगी वो इक्वेशन हमको हमें पता है कि ट्रायंगुलर का CG कहाँ होता है बेस से 1/3 h. सो दिस इज माय 1/3 h और टॉप से होगा 2/3 h. ओके तो ये जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस है ना ये जो मेरा CG है ना उसको हम एक कुछ अलग कलर से मेंशन करते. सो सपोज दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस. ओके सो हियर इट इज माय न्यूट्रल एक्सिस जो बेस से होगी 1/3 h डिस्टेंस पर और टॉप से होगी 2/3 h. ओके सो दिस इज 1/3 h दिस इज 2/3 h. बस इतना समझ आया? अब हम लोग क्या करते हैं कि
हम लोग यहाँ से ये जो इसका जो हाफ होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, ये जो पूरा सेक्शन है इतनी फिगर ड्रॉ करी, अभी मैंने समझाया इतनी सी पहले ड्रॉ करो, उसके बाद आगे की ड्रॉ करना। मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करते जाना, मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करती जाती हूँ आप लोग फिगर ड्रॉ करते जाना। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो मेरा h/2 डिस्टेंस है, मतलब ये जो ट्राइंगुलर सेक्शन है उसका हाफ डिस्टेंस। ओके, तो वो है h/2। ओके, तो अगर ये मेरा टोटल डिस्टेंस h है तो h/2 डिस्टेंस सपोज यहाँ पे है, सो दिस डिस्टेंस इज h/2, तो दिस इज h/2 और दिस इज 2/3 h। ओके, मेरा CG है ना h/2 पर नहीं आता है फॉर ट्राइंगुलर सेक्शन। मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो h/2 डिस्टेंस पे नहीं होता है, वो कहाँ होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, बेस से 1/3 h, टॉप से 2/3 h। ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज h/2। ये जो मेरा डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस, ओके, इफ दिस टोटल डिस्टेंस इज h, अगर ये टोटल डिस्टेंस h है तो इसका हाफ, तो दैट इज इक्वल टू माई h/2। समझ आया इतना? तो हमने ये और ये, बस अभी आप इतना ड्रॉ करो। चलो इतना पहले ड्रॉ कर लो, मैं उसके बाद आगे का एक्सप्लेन करती हूँ हमें क्या करना है वो। हो गया इतना? नो मैम बाकी। ओके, चलो नो फटाफट मैम बाकी है। फटाफट इतना ड्रॉ कर लो। अब अभी ये मत करना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसके बाद इतना पोर्शन करना। एक अभी ये मिनट मत मैम। करना। अगर आप डायग्राम अच्छे से समझ लोगे ना तो डेरिवेशन आपको इजीली आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि डायग्राम के बेस पे ही है। अगेन ये डेरिवेशन आप अपनी बुक में अच्छे से लिखना। बंसल में जो है वो थोड़ा हार्ड है, तो वो आपको समझ में नहीं, उसमें इंटीग्रेशन वो सब है। ओके, वो थोड़ा लेंथी भी है, थोड़ा हार्ड भी है। ये जो मैंने बनाया वो थोड़ा इजी है, तो ये देख लेना अच्छे से, आप लिखना तो आपको समझ में भी आएगा। अरे जल्दी करो, इतना ड्रॉ करने में इतना टाइम थोड़ी ना होता है। हो गया मैम। मैडम। हाँ तो बोलो तो। हो गया मैडम। ओके, सो ये है। ओके, अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने रेक्टेंगुलर में एक पोर्शन अज्यूम किया था, तो सेम यहाँ भी हम क्या करते हैं कि एक ट्राइंगुलर पोर्शन अज्यूम करते हैं। यहाँ से रेड कलर देते हैं। ओके, तो सपोज मैं ये एक इतना जो हैच पोर्शन है ना ये मेरा, तो मैं एक ट्राइंगुलर पोर्शन अज्यूम कर रही हूँ। ओके, ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन है एक छोटा सा, वो मैं एक अज्यूम कर रही हूँ। सपोज ये जो पोर्शन मैंने अज्यूम किया है ना उसकी हाइट है x, इसकी बड़े वाले की हाइट क्या थी, कैपिटल H, और जो छोटे वाला ट्राइंगुलर पोर्शन है उसकी हाइट क्या है, स्मॉल x। ओके, सो अज्यूम अ ट्राइंगुलर पोर्शन, ओके, हुज हाइट इज x फ्रॉम टॉप से उसकी हाइट है x, और सपोज उसका जो बेस है, ओके, वो है b डैश इज बेस। ये क्या है, b है, ये क्या है, b डैश, और सपोज ये जो पोर्शन है उसमें j और k नाम दे रही हूँ। ओके, तो दिस पोर्शन इज jk एंड jk इज इक्वल टू b डैश। ओके, jk इज इक्वल टू b डैश। ये जो बॉटम है मेरा बेस है छोटे वाले ट्राइंगल का, उसका ये पॉइंट है, उसका नाम, उसको मैं डिनोट करती हूँ j से, इस पॉइंट को डिनोट करती हूँ k से, तो ये मेरी लाइन क्या हुई, jk, और jk इज इक्वल टू क्या है, b डैश। ओके, so what is b dash, b dash is a base for a small triangle. What is capital small b, b is a base for large triangle. Okay, now this height is x again, इसकी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होगी, तो यहाँ से 1/3 x, टॉप से 2/3 x, जो हमने इसमें किया था, बॉटम से 1/3 h, टॉप से 2, मतलब हाइट का 1/3 और हाइट का 2/3, टॉप से 2/3 ऑफ हाइट, बॉटम से 1/3 ऑफ हाइट। इन दिस ट्राइंगल आवर हाइट इज फ्रॉम टॉप it is equal to 2/3 x, और फ्रॉम बॉटम इट इज इक्वल टू 1/3 x। हुआ, चलो ये ड्रॉ करो। हाँ, वन मोर थिंग। ओके, सपोज हाँ
ये जो मेरी न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये जो न्यूट्रल एक्सिस, उससे ये जो छोटे ट्राइंगल की न्यूट्रल एक्सिस है ना, उसका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज दैट इज इक्वल टू वाई बार। दोनों न्यूट्रल एक्सिस का, बड़े ट्राइंगल की न्यूट्रल एक्सिस और छोटे ट्राइंगल की न्यूट्रल एक्सिस, ये जो मेरा डिस्टेंस है ना, सपोज दैट इज इक्वल टू वाई बार, सपोज दैट इज इक्वल टू वाई बार। तो अच्छे से अब समझ के डायग्राम ड्रॉ करो। अगर डायग्राम रॉन्ग होगा, आपका डेरिवेशन में गड़बड़ हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा, फिर आप समझना चाहोगे फिर भी। ओके, तो अच्छे से अब डायग्राम ड्रॉ करो पूरा समझ के। ओके, पहले हमने एक बड़ा ट्राइंगल लिया, उसका बेस है बी, हाइट है एच, उसका सी जी फ्रॉम बॉटम इट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हाइट, फ्रॉम टॉप इट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ हाइट। फिर हमने क्या किया, उसका एक छोटा सा पोर्शन अज्यूम किया। ओके, वो एक छोटा सा ट्राइंगल है, अगेन उसकी हाइट क्या है एक्स, जैसा बड़े ट्राइंगल में है वैसा ही उसका सीजी कहाँ पे होगा, बॉटम से 1/3 एक्स, टॉप से 2/3 एक्स। फिर हमने क्या किया, उसका जो बेस है ना उसे बी डैश नाम दिया। ओके, और बड़े ट्राइंगल की न्यूट्रल एक्सिस से छोटे ट्राइंगल की न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस है वाई बार। किया इतना? हो जाए तो बोलना, हाँ, फिर मैं वेट नहीं करा करूं। कौन है बाहर, कौन है अभी? ये है ना, यहाँ तक का डिस्टेंस है, मेरी लाइन थोड़ी बढ़ गई है। एच जो है ना वो यहाँ तक ही आएगा, इसके टॉप तक का ही आएगा। सो दिस डिस्टेंस इज एच। हो गया? ओके, नाउ 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। ओके, ये अभी मत ड्रॉ करना, हम लोग डिराइव करेंगे, यहाँ पे टाउ फाइंड करेंगे, यहाँ पे टाउ फाइंड करेंगे, उसके बाद ये डायग्राम हमारा ड्रॉ होगा। तो ये आप लास्ट में करना। उसके इस फिगर के बाजू में थोड़ी जगह रख देना। करना हो तो ड्रॉ कर लो, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा कहाँ आ रहा है। वो हो गया अब? चलो, यस मैडम। नाउ अब ये क्या है, हम लोगों को सिर्फ लिखना है कि हमने कौन सी चीज क्या एक्सप्लेन करी है। ओके, सो विड्थ ऑफ स्ट्रिप। ओके, ये आप लोगों को, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप लोगों को लिखना है कि व्हाट इज स्मॉल b that is equal to base of large triangle, what is h that is equal to height of large triangle, what is small b dash that is equal to base of small triangle, what is x that is equal to height of small triangle। ओके, ये सब आप लिख लेना, मतलब किस कौन सी चीज क्या है वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है फिगर में। ओके, सो वो आप लिख लेना। नाउ what we do, we assume a small strip। okay, this is a strip। हमने क्या की, एक स्ट्रिप अज्यूम की है। ओके, तो फॉर स्ट्रिप पहले हम स्ट्रिप के लिए देखते हैं। विड्थ ऑफ स्ट्रिप क्या है, दैट इज इक्वल टू जेके, जेके इज इक्वल टू बी डैश। सो हियर ये क्या है, मेरी विड्थ ऑफ स्ट्रिप। ओके, सो ये मेरी है विड्थ ऑफ स्ट्रिप। width of strip क्या है, that is equal to jk and that is equal to b dash। now similarities of triangle। okay, what is similarities of triangle? हमने shear fall bending moment में देखा था। क्या होती है similarities of triangle? it is a mathematical rule। क्या होती है similarities of triangle? मैम
आमने सामने जो बेस है ना बी एंड बी हाँ, डैश मैम, वो बेस दोनों बाय इक्वल हाइट होगा इज मैम। इक्वल टू बेस बाय हाइट. ओके, बेस base बाय of हाइट base of small triangle upon height of small triangle is equal to base of large triangle upon height of large triangle. Okay, so that is a similarities of triangle जो हमने CFO bending moment. तो यहाँ पे मेरा small triangle का base क्या है? B dash upon height of small triangle is equal to B upon height of large triangle. Okay, तो ये जो B है उसको मैं यहाँ पे लेती हूँ और ये जो H है वो यहाँ पे. Okay, so ये जो मेरा similarities of triangle है. Okay, so here it is my similarities of triangle. B dash upon B is equal to X by H. Okay, base of small triangle upon height of small triangle is equal to, एक्चुअली सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल ये है, बेस ऑफ स्मॉल ट्राइंगल अपॉन हाइट ऑफ स्मॉल ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस ऑफ लार्ज ट्राइंगल अपॉन हाइट ऑफ लार्ज ट्राइंगल. तो ये जो बी है उसको मैं यहाँ पे लेती हूँ. ओके, सो इट बिकम्स लाइक दिस. ओके, बी ये सिर्फ बी है. ओके, ये डॉट हो गया ऐसे ही है. सो बी डैश अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच. ओके, सो ओके, सो बी डैश अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स बाई एच. ओके, सो अगर इस इक्वेशन को मैं बी डैश के फॉर्म में लाती हूँ तो माई इक्वेशन बिकम बी डैश इज इक्वल टू बी एक्स बाई एच. मतलब ये जो मेरे ट्राइंगल की हाइट है ना, ये कितनी होगी? लार्ज ट्राइंगल का बेस मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ट्राइंगल की हाइट डिवाइडेड बाय लार्ज ट्राइंगल की हाइट. इतना मुझे क्या मिलेगा? बेस. इस ट्राइंगल के लिए अगर मुझे लार्ज ट्राइंगल का बेस पता है, अगर मुझे स्मॉल ट्राइंगल की हाइट पता है और लार्ज ट्राइंगल की हाइट पता है, तो आई कैन एबल टू फाइंड बेस फॉर द स्मॉल ट्राइंगल. सो माय बी डैश इज इक्वल टू बी एक्स बाई एच. ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. चलो इतना लिखो पहले. ये तो इजी है, सिर्फ सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करना है. ओके, यस मैम. यहाँ पे ये लिख लेना, ये जो हमारा जनरल इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, उसके बेस पे ही हम ये डेरिवेशन करेंगे. ओके मैम. ओके, हो जाए तो बोलना फटाफट, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है अभी. डायग्राम तो है ना आपके पास, तो मैं ये ऊपर कर देती हूँ. आप अपने बुक में जो डायग्राम है ना उसमें से देखना अभी. ओके, नाउ एरिया ऑफ स्ट्रिप. स्ट्रिप मतलब ऊपर वाला जो मेरा हैच पोर्शन है वो, दैट इज माय स्ट्रिप. ओके, जो पोर्शन मैंने अज्यूम किया है वो. सो एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट. ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट. ओके, बट नाउ फॉर स्मॉल ट्राइंगल व्हाट इज माय बेस? दैट इज इक्वल टू माय बी डैश. व्हाट इज हाइट? दैट इज इक्वल टू एक्स. बट बी डैश क्या है? बी डैश की ये जो वैल्यू है ना जो मुझे मिली है वो मैं क्या करती हूँ? यहाँ पे रखती हूँ. ओके, bx upon h. हाँ, तो my b dash is equal to what? That is equal to bx in upon h. तो my area becomes a is equal to bx square upon 2h. Okay, so this is my equation number 2. Okay, my area is equal to bx square upon 2h. Write down. हो गया. हो गया. Okay, now what is y bar? वाई बार क्या है? यहाँ पे आप लोग अपने जो डायग्राम ड्रॉ किया ना उसके अंदर देखो तो मेरा वाई बार क्या है. सो ये जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है ना, दैट इज इक्वल टू माय वाई बार. ओके, सो व्हाट इज दिस? ओके, सो वो डिस्टेंस क्या है मेरा? स्मॉल ट्राइंगल, लार्ज ट्राइंगल के लिए क्या है? ऊपर तक का 2/3 h. स्मॉल ट्राइंगल के लिए क्या है? 2/3 x. तो मैं क्या करूंगी? 2/3 x. आप अपने डायग्राम में देखना. ओके, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है. ओके, सो माय y bar इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2/3 h एंड 2/3 x. इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हुआ मेरा y bar. समझ आ रहा है? आप लोग अपने डायग्राम में देखना, कभी समझ आएगा. ओके, तो माय y bar इज इक्वल टू 2/3 h minus 2/3 x. Okay, 2/3 common, so my y bar becomes 2/3 in bracket h minus x. समझ आया? इन ब्रैकेट h माइनस x. अब मुझे क्या करना है? एकदम सिंपल, ये सभी जो वैल्यूज है a की, y बार की और b की, b डैश की, सॉरी b की नहीं, हियर इट इज द b डैश. ये जो मेरा है ना वो b डैश होगा.